Dear students, I am Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today we are going to cover topic number 2.9 of Unit 2. Topic name is Functions of Session, Presentation and Application Layer. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to list the functions of session, presentation and application layers of OSI model and compare TCP/IP model with OSI model. The course outcome that will get mapped is CO2. You will be able to use the relevant network model, that is TCP/IP model or OSI model, for the specified data communication system. Then program outcomes will map PO1. There will be improvement in your basic as well as electronics engineering specific knowledge. PO4. You will be able to use various you will be able to perform various experiments like using TCP/IP or OSI model. You will transfer data from one network to another network using various engineering tools like cables, switches and computer system and other hardware devices. Then PO6, project management. So you will be able to work on small projects or micro projects with this knowledge in a team or individually, and by doing this your oral as well as written communication will get improved, as well as your interpersonal skills and presentation skills will be enhanced. Then PO7, the knowledge you are taking here, that knowledge will be with you for lifetime, and if there are any technological changes, then you will be adaptable to that changes. So PO7, lifelong learning is achieved. So all these POs are mapped. The prerequisite to this topic is you should know all the 7 layers of OSI model. Now let us see working and functions of session layer. So this is the working diagram of session layer. So जो भी हमको डेटा मिलेगा प्रेजेंटेशन लेयर से, so वो डेटा जाएगा हमारे सेशन लेयर के पास. देन सेशन लेयर उनको सेशंस में डिवाइड करेगी. मीन्स पर्टिकुलर काम करने के लिए हमको कितना टाइम लगा, टाइम मैनेजमेंट का जो काम है वो यहाँ पे सेशन लेयर परफॉर्म करेगी. एंड देन वो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसमिट करेगी. दिस इज द सेंडर साइड एंड बाय डेस्टिनेशन साइड और रिसीवर साइड. ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा जाएगा सेशन लेयर में, देन सेशन लेयर उस डेटा को भेजेगी प्रेजेंटेशन लेयर में, एंड प्रेजेंटेशन लेयर भेजेगी अपर लेयर्स, एंड लास्ट एप्लीकेशन लेयर पे ये डेटा जाएगा और पर्टिकुलर रिसीवर या यूजर को, डेस्टिनेशन यूजर जो है उसको मिलेगा. सो पहला फंक्शन है डायलॉग कंट्रोल. सो सेशन लेयर एक्ट्स एज अ डायलॉग कंट्रोलर that creates a dialogue between two processes, or we can say that it allows the communication between two processes which can be either half duplex or full duplex. Means dialogue control करने का ये काम करती है. दो जो प्रोसेसेस हैं, रिसीवर साइड की प्रोसेस एंड सेंडर साइड की प्रोसेस. सो इन प्रोसेसेस के बीच में वो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का काम करती है. So we can say it performs a role of dialogue control. And जो communication होने वाला है between two processes, that can be either half duplex or full duplex. Means एक तो bidirectional communication रहेगा या फिर one directional communication रहेगा. Next is synchronization. Session layer adds some checkpoints when transmitting the data in sequence. If some error occurs in the middle of the transmission of data, then the transmission will take place again from the checkpoint. This process is known as synchronization and recovery. Synchronization करने का काम करती है. इसका मतलब जब भी हम डेटा सेंड कर रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम इंटरवल वहां पे एक चेक पॉइंट ऐड करेगा जो है सेंडर साइड पे. ओके, तो सेंडर साइड की प्रोसेस है सेशन लेयर, उसमें एक चेक पॉइंट ऐड करेगा. देन रिमेनिंग डेटा है वो सेंड करेंगे. देन अगेन आफ्टर सम टाइम इंटरवल
फिर से एक चेक पॉइंट ऐड होगा। तो हमको ये पैकेट का सीक्वेंस जो है ये भी मेंटेन करने में काम आएगा। ये जो चेक पॉइंट्स ऐड करने का जो हमारा काम है वो हमारे पैकेट सीक्वेंस में भी हम भेज सकते हैं, या फिर अगर बीच में कोई एरर आता है तो इस चेक पॉइंट तक हमने अब डेटा सेंड किया है, लेकिन इस चेक पॉइंट के बाद एरर आया है तो पर्टिकुलर उसी चेक पॉइंट के बाद वाला जो पैकेट है वो हम सेंड कर सकते हैं। तो हमको पूरा का पूरा जो कंप्लीट पैकेट या कंप्लीट मैसेज है या कंप्लीट डेटा है वो सेंड करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, हम बार बार वही डेटा सेंड करते जाएंगे तो क्या होगा कि एक तो हमारा ट्रैफिक भी बढ़ेगा और हमारा जो लोड है डेटा ट्रांसमिशन का वो भी बढ़ेगा। ओके सो और रिसीवर को बहुत वो जो डेटा मिलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सो ये सब मैनेज करने के लिए हम चेक पॉइंट्स देते हैं। सो जहां तक हमारा डेटा पहुंचा है उस चेक पॉइंट तक हम नहीं सेंड करेंगे डेटा, लेकिन उसके बाद अगर एरर आया है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वाला पैकेट ही हम रिसीवर को सेंड करेंगे। सो ये जो प्रोसेस है चेक पॉइंट देना एंड एरर रिकवर करना एंड फिर से उसको रिट्रांसमिट करना डेटा को, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकवरी। सो इस तरीके से सेशन लेयर वर्क करता है। सो सेशन लेयर एक्चुअली सेशंस मैनेज करने का काम करता है। सेशन मैनेज करना मीन्स व्हाट, सेंडर से डेटा कौन से टाइम पीरियड पे वहां से सेंड हुआ है, मीन्स कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए कितना टाइम लगा है बिटवीन सेंडर प्रोसेस एंड रिसीवर प्रोसेस। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन मीन्स चैनल जो है वो एक्टिव कम्युनिकेशन चैनल कितने देर के लिए एक्टिव रहा है, एंड आफ्टर दैट कितने टाइम पीरियड के बाद एग्जैक्टली रिसीवर को डेटा मिला है। तो ये सब टाइम मैनेज सेशन मैनेजमेंट का जो काम है, पर्टिकुलर सेशन कितने टाइम चला, ये काम है सेशन लेयर का। सो ऑल दिस आर द फंक्शंस ऑफ सेशन लेयर। वर्किंग एंड फंक्शंस ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर से जो भी डेटा आएगा वो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर के पास, देन प्रेजेंटेशन लेयर से जो भी डेटा आएगा वो जाएगा सेशन लेयर के पास। सो सेम सीक्वेंस विल बी फॉलोड एट रिसीवर साइड ऑल्सो। सो प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा को एनकोड करती है, एनक्रिप्ट करती है एंड कंप्रेस करती है। सो नाउ वी विल सी दिस टर्म्स वन बाय वन। सो फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसलेशन। The process in two systems exchange the information in the form of characters, strings, numbers and so on. Different computers use different encoding methods. The presentation layer handles the interoperability between the different encoding methods. Means suppose this sender ने किसी एक फॉर्मेट में डेटा भेजे, सपोज इसने नंबर के फॉर्म में डेटा भेजा है, लेकिन रिसीवर को नंबर के फॉर्मेट समझ में नहीं आते हैं, रिसीवर को सिर्फ कैरेक्टर्स या फिर स्ट्रिंग्स समझ में आते हैं। सो ये जो ट्रांसलेशन का काम है, नंबर टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू नंबर, ये जो कन्वर्जन का ट्रांसलेशन का काम है वो हैंडल करती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल्स द इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट एनकोडिंग मेथड्स। डेटा को रीड करने की जो मेथड है that method is called encoding method, और ये डिफरेंट एनकोडिंग मेथड को सपोर्ट करता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, उनको ट्रांसलेट करता है। सेकेंड इज एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन इज नीडेड टू मेंटेन प्राइवेसी। Encryption is a process of converting the sender transmitted information into another form and sends the resulting message over the network. अब encryption means क्या है कि सपोज कोई हम डेटा भेज रहे हैं उसको किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, दैट इज नॉट रीडेबल टू नॉर्मल यूजर। ओके, तो जो कोई भी नॉर्मल यूजर है उसको अनरीडेबल फॉर्मेट रहेगा, उस फॉर्मेट में हम इस डेटा को एनक्रिप्ट करेंगे। मीन्स डेटा को मिक्स करेंगे, कोई जो कैरेक्टर्स है उसमें ऐड करेंगे। सो इस दिस तरीके से हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं डेटा को, क्योंकि व्हाइल ट्रांसमिटिंग द डेटा हमको बहुत सारे ऐसे अनऑथराइज यूजर्स मिलेंगे। सो अनऑथराइज यूजर्स है जो हमारे डेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और हमारे डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, और ये हमारे डेटा हैक नहीं हो पाएगा इस तरीके से। तो इसीलिए हमको पर्टिकुलर हमारे डेटा की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए उसको एनक्रिप्ट करना पड़ता है। सो सेंडर साइड में एनक्रिप्शन होगा और रिसीवर साइड में डिक्रिप्शन होगा। डिक्रिप्शन मीन्स व्हाट, फिर से सेम डेटा जो है वो डिक्रिप्ट किया जाएगा इन द ओरिजिनल फॉर्म। तो यहाँ पे
एनक्रिप्शन का एक अल्गोरिदम लगेगा सेंडर साइड पे और डिक्रिप्शन का एक अल्गोरिदम लगेगा रिसीवर साइड पे। सो ये दोनों भी अल्गोरिदम, पहले एनक्रिप्शन का अल्गोरिदम वर्क होगा तो किसी और फॉर्मेट में हमारा डेटा ट्रांसलेट होगा, देन वो डेटा रिसीवर साइड पे जाएगा, तब डिक्रिप्शन का अल्गोरिदम काम करेगा और ओरिजिनल मैसेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम हमारे मैसेज की जो है प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। देन कंप्रेशन। So data compression is a process of compressing the data. That is, it reduces the number of bits to be transmitted. Data compression is very important in multimedia such as text, audio और video. Compression means what? हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, उसको मिनिमाइज करना। मैक्सिमाइज है हमारे पास डेटा, उसको मिनिमाइज करना, क्योंकि जो अनरिलेवेंट बिट्स हैं या फिर अनरिलेवेंट एड्स आते हैं सपोज हमारे डेटा में, या अननेसेसरी जो भी डेटा है हमारा, उसको हम कंप्रेस करते हैं या रिमूव करते हैं। ओके, तो हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वही सिर्फ हमारा ट्रांसमिशन मीडियम से ट्रेवल होगा। सो डेटा कंप्रेशन हम क्यों करते हैं? ताकि वो जल्दी से जल्दी रिसीवर तक एरर फ्री तरीके से रिसीवर को मिल जाए, इसलिए हम डेटा कंप्रेशन करते हैं। और एट द टाइम व्हेन वो रिसीवर को मिलता है डेटा, तब हम उसको डीकम्प्रेस भी करते हैं, ताकि अगर हमारा डेटा जैसे रिसीवर ने सेंड नहीं किया है वैसे डेटा अगर सेंडर ने सेंड किया है वैसा का वैसा डेटा अगर रिसीवर को नहीं मिला तो देयर में बी सम प्रॉब्लम। इसीलिए हम डेटा को डीकम्प्रेस करते हैं रिसीवर साइड पे। तो इसीलिए एनकोडिंग, एनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन ये सेंडर साइड पे होगा और डिकोडिंग, डिक्रिप्शन एंड डीकम्प्रेसिंग ऑफ डेटा ये रिसीवर साइड पे होगा। सो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। देन एप्लीकेशन लेयर। सो पहला फंक्शन है फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। सो इट अलाउज यूजर टू एक्सेस फाइल्स इन रिमोट कंप्यूटर। सो रिमोट कंप्यूटर में एक यूजर यहाँ पे है और दूसरा यूजर यहाँ पे है, दैट मे बी अक्रॉस द कंट्री और वर्ल्ड वाइड वेब। सो रिमोट लोकेशन पे हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दैट इज फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। फाइल को ट्रांसफर करेंगे, उस फाइल को दिस साइड में रिसीव करेंगे एंड उसको मैनेज करेंगे। मेल सर्विसेज, हम डिफरेंट मेल सर्विसेज जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मेल सेंड कर सकते हैं, मेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, मेल को क्रिएट कर सकते हैं और मेल को स्टोर कर सकते हैं। सो क्रिएटिंग ऑफ मेल, फॉरवर्डिंग ऑफ मेल एंड स्टोरिंग ऑफ मेल इंफॉर्मेशन, तो ये जो मेल सर्विसेज है फ्रॉम रिमोट लोकेशन हम ये कर सकते हैं। देन डायरेक्टरी सर्विसेज, an application provides the distributed database sources and is used to provide the global information. So ऐसा अगर हमारे पास कोई कॉस्टली सॉफ्टवेयर है या डेटाबेस है जिसको हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बट इट इज नॉट अफोर्डेबल टू एक्सेस इट, ओके, और टू ओन इट, हम उसको खरीद नहीं सकते हैं, तो ऐसा जो कोई कॉस्टली डेटाबेस है वो हम ग्लोबली शेयर करेंगे, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी सर्विसेज। इसमें इंपॉर्टेंट फाइल्स हो सकते हैं या कोई डेटाबेस या कोई कॉस्टली सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो एक लोकेशन से, रिमोट लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक वर्ल्ड वाइड वेब हम ये एप्लीकेशन लेयर का यूज करके इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल। सो एज यू नो, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स होते हैं। इसमें वर्टिकल लेयर्स अप्रोच फॉलो करते हैं हम, लेकिन टीसीपी आईपी में हॉरिजॉन्टल लेयर का अप्रोच फॉलो होता है। ये दोनों भी सर्विसेज को अप्लाई करती है, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। ये भी दोनों भी कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को सपोर्ट करती है। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सर्विस, इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल। तो ये हम सर्विस, प्रोटोकॉल और इंटरफेस के बीच डिस्टिंग्विश करती है, लेकिन यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल में उसको अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं किया है। ओके, प्रोटोकॉल्स आर हिडन एंड रिलेटिवली इजीली टेक्नोलॉजी चेंजेस। मीन्स जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हम प्रोटोकॉल्स को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में ऐसा नहीं होता है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल वाज डिवाइस्ड बिफोर द करस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल्स वेयर डिजाइन। प्रोटोकॉल डिजाइन करने के पहले ही ओएसआई रेफरेंस मॉडल लॉन्च हुआ और यहाँ पे प्रोटोकॉल कम फर्स्ट एंड देन मॉडल वाज डिक्रिप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पे पहले प्रोटोकॉल आए और देन बाद में यूज किया, लेकिन ओएसआई में ऐसा नहीं हुआ।